السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں صدر محترم اور مہمان خصوصی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نشستوں کو سنبھالیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ معزز و مکرم صدر محترم، مہمان خصوصی، معلمات اور میری دینی بہنوں، 2 تاریخ 12واں مہینہ 2022 بروز جمعہ جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اس انجمن کی صدارتی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے ہمارے درمیان کرسی صدارت پر جلوہ افروز، معزز و مکرم، قابل صد احترام فضیلت الشیخ حافظ ہدایت اللہ عمری حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کا اس اجلاس میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کا حسین و جمیل گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس اجلاس کے نور کو بڑھانے کے لیے اور اس اجلاس کو اہمیت کے قابل سمجھ کر اپنے دیگر تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنا قیمتی وقت اس بابرکت محفل کے لیے صرف کرنے والے ہمارے معزز و محترم مہمان جناب شیخ فیض اللہ صاحب لیکچرر کا بھی میں ہمارے اس انجمن میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اسی طرح دیگر جو باہر سے تشریف فرما مہمان ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، بلا کسی تاخیر کے ہمارے اس اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں قابل قدر صدر محترم سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین و سامعات، طریقہ سلف رہا ہے کہ کسی بھی بزم کے آغاز میں سب سے پہلے سب سے بہترین کلام رحمتوں و برکتوں سے پر عالم انسانی کے رہنمائی کے لیے رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین پر بابرکت ماہ کی سلامتی والی شب میں نازل ہونے والے کلام ربانی سے کرنے کے لیے میں ہماری ایک بہن الصف الثالث کی طالبہ مسکان بنت عبدالحمید کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پرنم آواز سے کلام الہی کے ذریعے سے ہمارے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله. ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں اور چاشنی عطا کرے. بعدہ تلاوت کلام اللہ کے بعد رب دو جہاں، خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نسرین کو، جو کہ اسف الثالث کی طالبہ ہیں، وہ آئیں اور اپنی پرنم آواز میں حمد باری تعالی سامعین و سامعات کے گوشے گزار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات دن اپنے رب کو منایا کرو، دل میں خوف خدا بھی بسایا کرو. رات دن اپنے رب کو منایا کرو، دل میں خوف خدا بھی بسایا کرو. کوئی بھوکا اگر تم کو آئے نظر، کوئی بھوکا اگر تم کو آئے نظر، اس کو جان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. ہمارے ایک اور مہمان تشریف فرما ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر کے اسٹیج پر بیٹھ جائیں. جناب شیخ صادق صاحب حفظہ اللہ وہ آئیں اور اسٹیج پر بیٹھیں. معزز سامعین و سامعات، ہمارے درمیان جو مہمان تشریف فرما ہیں فیض اللہ صاحب لیکچرر، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو پردہ حائل ہے تعارف کے ذریعے سے اس پردے کو ہٹایا جائے. ان کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا. فیض اللہ صاحب لیکچرر، یہ آ کر کے آتمکور قریے کرکندہ آپ کا آبائی مقام ہے. آپ نے بنیادی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم عثمانیہ کالج کرنول میں ہوئی. اللہ کی مدد شامل حال رہی اور آپ کی کڑی محنت، دن رات کی قد و کاوشوں نے ایک دن آپ کو اردو لیکچرر بنا دیا. ابھی اس وقت آپ شہر نندیال کے گورنمنٹ آرٹس کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے تقریباً 9 سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. موصوف جماعت و جمعیت کے سلسلے میں کافی حساس ہیں اور اپنے بہترین مشوروں سے وقتاً فوقتاً جماعت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں سربلندیوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. سامعات، اس مدرسے میں طالبات کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اصلاح کی جاتی ہے. صرف تعلیم و تربیت کے ذریعے سے خود کی اصلاح ہی نہیں بلکہ طالبات کو اس قابل بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد عوام میں جا کر اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں. اردو، عربی، ان چیزوں کے ذریعے سے طالبات میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ علاقائی زبان اسٹیٹ لینگویج پر بھی طالبات پر توجہ دی جاتی ہے کہ طالبات معاشرے میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ کریں. اردو، عربی کے ساتھ ساتھ تیلگو، انگریزی وغیرہ بھی طالبات کو سکھایا جاتا ہے. صرف پڑھانا سکھانا ہی نہیں بلکہ ان ادر لینگویجز میں بچیوں کو تقریر کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا جاتا ہے. تو بچیاں بے شمار ہیں. وقت کی قلت کی بنا پر ان میں سے چند آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ العظیم اپنی علمی کاوشوں کو اظہار کریں گے. تو اب آئیے ہم اپنے اس انجمن کی جو اصل کڑی ہے میدانی خطابت کی طرف رجوع کرتے ہیں. لوگوں میں دعوت دین کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو تحریری طریقے سے یا پھر تقریری طریقے سے. ہماری طالبات بفضل اللہ و برحمتہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ تقریری میدان میں بھی اپنا لوہا منوانے کی طاقت رکھتی ہیں. اب یہاں آپ کے سامنے اردو اور تیلگو زبانوں میں طالبات اپنا علمی مظاہرہ پیش کریں گی. تو میں آج اس بزم کی سب سے پہلی مقررہ شیخ آفرین بنت شیخ عمر کو ڈائز پر مدعو کرتا ہوں، جو آپ کے سامنے خاتون اسلام کے اخلاق و کردار اس عنوان پر لب کشائی کریں گی. وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے خاتون اسلام کے اخلاق و کردار. حسن اخلاق سے مشرف غیر معمولی خیر و برکت کی علامت ہے اور اس سے محرومی انتہائی بدبختی خیر و برکت سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی و بھلائی کے متعلق سوال کرنے والے کے جواب میں ارشاد فرمایا البر حسن الخلق. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جنت میں اکثر لوگ کس چیز کی وجہ سے داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. خاتون اسلام کے بہترین اخلاق کیا ہیں؟ اسلام پر عمل کرنے والی عورتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں. خاتون اسلام کے اخلاق و کردار میں سب سے پہلی چیز صبر ہے. حقیقی صبر یہ ہے کہ آپ اپنے کو اللہ
जैसे झूठ, खियानत, धोखा, तकब्बुर, बखील, शिकवा शिकायत, तकदीर से नाराजगी वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, बेशक सब्र तो वो है जो किसी सदमे की इब्तिदा किया जाए। खातून इस्लाम के अखलाक व किरदार में दूसरी चीज अफू दरगुजर करना। तमाम बुरी बातों और गलत हरकतों को जो देखते हैं या सुनते हैं नजरअंदाज कीजिए और अफू दरगुजर से काम लीजिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरदी अनिल जाहिलीन, नरमी और अफू दरगुजर से काम लीजिए और जाहिलों से एराज कीजिए। अल्लाह ताला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाया, फस्फह अन्हुम वकुल सलाम, आप इनसे दरगुजर फरमाएं, कह दीजिए कि तुम पर सलामती हो। खातून इस्लाम के अखलाक व किरदार में तीसरी चीज बाहया व बावकार रहना। शर्म व हया और पुरवकार रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा और नेक व ihसान की जामिल सिफत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, बेशक ये ईमान का हिस्सा है। चुनांचे आप अपने शोहर और अहले खाना और तमाम लोगों से हया इस तौर पर कीजिए, फहश कलामी और बेहुदा गोई से परहेज करें, जो ऐसी कौम व फेल का इर्तिकाब ना करें जो आपके वक़ार व हया व इज्जत के मुनाफी हो। शर्म व हया और तमाम खैर व भलाई की चीज़ों का मजमुआ है। अगर कोई ये हया की सिफत से मुत्तसिफ ना हो, ऐसी औरतों और मर्दों के मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में सरी बराबर भी शर्म ना हो फस्ना मा शिअता, जो चाहे वो करो। खातून इस्लाम के अखलाक व किरदार में चौथी चीज सखावत को अपनाना। हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी के मामलात में सखावत को इख्तियार करें, चाहे वो खाने पीने के मामलात हो या पहनने की ही क्यों ना हो। आप सखी बने, ज़रूरत से ज़्यादा अगर मौजूद रहे तो अल्लाह की राह में खर्च करें और अपने आप को अज्र व सवाब से मुस्तहिक बनाएं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जिसने दिया और उससे अल्लाह का डर और अच्छी अखलाक को सच्चा समझा, उसके लिए हम राहत की चीज़ें आसान कर देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खातून इस्लाम के अखलाक व किरदार को अपनाने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बताए गए सिफ़ात को अपनाने की तौफीक अदा फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, इलाक़ाई ज़ुबान स्टेट लैंग्वेज तेलुगु में भी आज मौजूदा दौर में दीन इस्लाम की तबलीग की बेहद ज़रूरत है। जिस तरह उर्दू इलाक़ों में हम उर्दू के ज़रिए से तकारीर करते हैं, तकारीर करके लोगों की इस्लाह करते हैं, वैसे ही तेलुगु ज़ुबान में भी तकरीर करके लोगों की इस्लाह, गैर मुस्लिमीन तक दीन इस्लाम के सही तसव्वुरात को पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जामिया हाज़ा में इस मदरसे में तालिबात को तेलुगु में भी तकारीर की प्रैक्टिस कराई जाती है और बाकायदा तालिबात तेलुगु में भी बिफ़ज़्लिल्लाह बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर सकते हैं। तो मैं हमारी तालिबात में से एक तालिबा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम है समीरा बिनते जलील अहमद, जो आपके सामने मरना यातना इस उन्वान पर तकरीर करेंगे। वो आएँ और अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सखरतुल मौति बिल हक़। వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులైన పెద్దలు, ఉపాధ్యాయులు, ముఖ్య అతిథులు మరియు నా తోటి సహోదరులందరికీ ఇస్లామియా పరిభాషలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు. ఈ యొక్క అర్థం, అల్లా మన యొక్క శాంతి మరియు శుభాలను మన అందరిపై కురిపించుగాక. ఆమీన్. నేటి నా అంశం మరణ యాతన. మనోహరమైన సుఖ సౌఖ్యాలతో కూడుకున్న ఈ 3 నాళ్ల జీవితపు ముచ్చట తీరిన తర్వాత రాబోయే దశలు అత్యంత కఠినంగా, బాధాకరంగా, వ్యధభరితంగా ఉంటాయి. అన్నిటికంటే మొదటి దశ చావు. ప్రాణమున్న ప్రతి జీవి మృత్యువును చవి చూడవలసిందేనని అల్లాహ్ తమ దివ్య ఖురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు. కుల్లు నఫ్సిన్ జాయిఖతుల్ మౌత్.
సోదరిమణులారా, మరణించిన తర్వాత ఎవరు తిరిగి రారు కనుక మృత్యువు సంభవించేటప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. కానీ చావు తీవ్రత మరియు దాని దుర్భర స్థితి గురించి ఖురాన్ హదీసుల్లో చెప్పబోయే విషయాలను బట్టి చూస్తే ప్రపంచ జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలు, కడగండ్లు, ఆపదలు, దుఃఖ విచారాలన్నీ కలిపితే ఎంత నొప్పి అవుతుందో మృత్యువు సంభవించేటప్పుడు అంతకంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ నొప్పి కలుగుతుందని తెలుస్తుంది. వజాఅత్ సఖ్రతుల్ మౌతి బిల్ హక్, చావు తీవ్రత సత్యంతో రానే వచ్చింది. మృత్యువు బాధ గురించి తెలియజేస్తూ అల్లాహ్ ఇలా అంటున్నారు, కల్లా ఇజా బలగతి తరాఖియా వకీల మన్ రాక్ వజన్న అన్నహుల్ ఫిరాక్. ప్రాణం గొంతులోకి వచ్చినప్పుడు మంత్రించి ఊదేవారెవరైనా ఉన్నారా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు అతడు వాస్తవానికి తన ఎడుబాటు కాలం వచ్చేసిందని గ్రహిస్తాడు. అలాంటప్పుడు ఒక కాలు మరొక కాలుతో కలిసిపోతుంది. ఒక కాలు మరొక కాలుతో కలిసిపోవడం అంటే మృత్యువు సంభవించేటప్పుడు పుంకాలు పుంకాలుగా బాధలు వస్తుంటాయి. ఆ బాధలకు తాళలేక మనిషి ఒక కాలుతో మరొక కాలికి రాపిడి చేసుకుంటాడు. అప్పుడు కానీ ప్రాణం దేహం నుండి బయటికి రాదు. మృత్యువు బాధ గురించి తెలియజేస్తూ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అంటున్నారు, మృత్యువు బాధ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇన్న లిల్ మౌతి లసకరాత్. సోదరిమణులారా, ఈ మృత్యువు మనిషి జీవితంలో మాధుర్యాన్ని పటాపంచలుగా మార్చివేస్తుంది. ఒకే ఒక చావు దెబ్బతో మనిషి జీవితంలో గడిపిన సుఖాన్నంతటిని మర్చిపోతాడు. అప్పుడు దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరణాన్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తించుకోండి అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఈ విధంగా అన్నారు, అక్సిరు జిక్ర హాజిమిల్ లజ్జాత్ యానీ మౌత్. మరణ బాధలో చివరిలో అల్లాహ్తో దువా ఏమనగా మన యొక్క మృత్యువును ఎల్లప్పుడూ గుర్తించుకుంటూ మరణ యాతనను తగ్గించి పరలోకంలో ప్రతిఫలం పొందే సౌభాగ్యాన్ని కలిగించుగాక. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। समीईन व समीआत, आजकल हमारा मुआशरा बिल्कुल बिगड़ रहा है। मुआशरती एतबार से लोग बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। मुआशरा तो मुआशरा, घर का माहौल भी बिगड़ा हुआ है। घर के माहौल में सुकून व इत्मीनान नामी कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। तो चलिए मालूम करते हैं कि घरों का माहौल हम खुशगवार कैसे बना सकते हैं, घरों के माहौल में सुकून व इत्मीनान हम किस तरह से दाखिल कर सकते हैं। इसी उन्वान पर कि घरों का माहौल खुशगवार कैसे बनाएं, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी तालिबा को बुलाना चाहूँगा जिनका तकरीरी अंदाज़ आपको इधर उधर देखने पर भी मजबूर नहीं करेगा, जिनका अंदाज़ आपको उनकी जानिब देखने पर मजबूर कर देगा। इससे मेरी मुराद फ़ातिमा बिनते कासिम वली हैं, जिनका उन्वान घर का माहौल खुशगवार कैसे बनाएं। वो आएँ और अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है घर का माहौल खुशगवार कैसे बनाएं। दो चीज़ों का नाम है, एक घर के दरो दीवार, दूसरा घर में रहने वाले अफराद। घर की खूबसूरती जहाँ दरो दीवार से होती है वो है सुकून व इत्मीनान के हुसूल के लिए अफराद का बाहमी ताल्लुक़ और खुशगवार माहौल से है। अल्लाह ताला की अता करदा नियामतों में से एक नियामत
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، کیونکہ گھر ہی ہے جہاں عورت مستور ہوتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلے جاہلیت زینت ظاہر کرنے والوں کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ سکون، اطمینان اور برکت اللہ تعالیٰ کچھ اسباب کے ذریعے فراہم کرتا ہے، اور ہم ان اسباب کو سمجھ کر اپنے گھروں میں رائج کر کے ماحول کو پرسکون بنانا ضروری بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا پہلا ذریعہ ایک دوسرے کا احساس، گھر کے افراد کا باہمی تعلق اور ایک دوسرے کے حالات کو جاننا شرعی تقاضا ہے۔ جب قوم نوح پر عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی فکر کی جو کہ کافر اور عذاب کا مستحق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی ہی فکر اپنے والد کے لیے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور کتنے پیارے اور میٹھے انداز میں اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، اے میرے والد تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھ پر رحمان کی طرف سے عذاب نہ آن پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اور یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کہیں یہ سرکشی میرے والد کو برباد نہ کر دے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا دوسرا ذریعہ اصلاح کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، سمجھانا شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور اس بنیاد کی کامیابی اخلاق حسنہ اور دین میں چھپی ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے گھریلو معاملات میں ایک دوسرے کو اچھے انداز میں سمجھانا اور اصلاح کرانا گھر میں خوشگوار ماحول کو قائم رکھتا ہے، اور یہ ذمہ داری گھر کے ہر فرد پر اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس نگہبانی کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا تیسرا ذریعہ دینی تربیت کا اہتمام کرنا۔ گھریلو ماحول کی سعادت کا راز دین کی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ گھر میں جتنا دین کا اہتمام ہوگا وہ گھر اتنا ہی خوشحال ہوگا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے اور وطر پڑھتے، پھر فرماتے کہ اے عائشہ اٹھو اور وطر پڑھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت فرماتے کہ جو آدمی رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا چوتھا ذریعہ اولاد کی تربیت۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو جو لوگ ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے تمام افراد کو خصوصاً اولاد کی تربیت پر توجہ دے، کیونکہ گھر کا سکھ چین بچوں کی سعادت میں ہے اور بچوں کی سعادت دین میں چھپی ہے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا پانچواں ذریعہ دعا۔ اپنی کوشش و عمل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ سعادت و کامیابی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کے ذریعے اپنے
अपने घर का सुख चैन तलब करें। और भी बहुत सारे आमाल हैं जिनके ज़रिए हम अपने घरों को खुशगवार बना सकते हैं। मसलन बच्चों की बुरी दोस्ती से रोकना और घरों में बच्चों की बिगाड़ की चीज़ें ना रखना और घर के माहौल को इस्लामी बनाने की कोशिश करना। अगर घर का माहौल इस्लामी हो गया तो खुशियाँ खुद ब खुद घर में नाजिल हो जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम तमाम को सुनी कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें घर के माहौल को खुशगवार बनाने वाले असबाब को अपनाने की तौफीक अदा फरमाए, हमारे घरों को रहमतों और बरकतों से भर दे। अज़ीज़ तालिबात, अब आपके सामने समाधि तीव्रता, क़ब्र की सख्तियाँ किस कदर होती हैं। एक काफिर आदमी, एक नाफरमान आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, रसूल की इताअत किए बग़ैर ज़िंदगी गुजार कर क़ब्र में पहुँचता है तो क़ब्र में उसकी क्या हालत होती है, क़ब्र उसको किस तरह से तंग करती है, क़ब्र में किस तरह के अज़ाबात उसके लिए तैयार बैठे हैं। इस उन्वान पर रोशनी डालने के लिए मैं हमारे एक तालिबा कशिश बिनते अफसर बादशाह को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और समाधि तीव्रता इस उन्वान पर लब कुशाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। वक़ाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़ाउ मिन्हु। అనంత కరుణమయుడు సర్వలోకాలకు అధిపతి అయినటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. సభకు విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన సభ అధ్యక్షురాలు, అతిథులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు నా తోటి సహోదర సహోదరిమణులారా, ఈరోజు ఈ సభలో నా యొక్క అంశం సమాధి తీవ్రత. అవిశ్వాసుల ఆత్మలను వశపరుచుకోగానే దైవదూతలు వారిని కొట్టడం ప్రారంభిస్తారు. వలౌ తరా ఇజ్ యతవఫ్ఫల్లజీన కఫరుల్ మలాయికతు యజరిబూన ఉజూహహుం వ అద్బారహుం వజూకు అజాబల్ హరీక్. అవిశ్వాసుల ప్రాణ దైవదూతలు హతులైన అవిశ్వాసుల ప్రాణాలు తీసేటప్పటి స్థితిని నీవు గనుక చూడగలిగితే ఎంత బాగుండేది. వారు వారి మొహలపైన పిరుదులపై కొట్టేవారు, ఇంకా ఇలా అనేవారు, ఇదో కాల్చే శిక్షను అనుభవించు. పచ్చని ప్రపంచంలో భోగభాగ్యాలతో కూడిన జీవితం గడుపుతున్న వారులారా, తీయటి మధురమైన ప్రపంచపు సుఖాలు అనుభవిస్తున్న వారులారా, రంగురంగుల మనోహర ప్రపంచపు ఎండుమావుల్లో తచ్చాడుతున్న వారులారా, అందమైన ప్రపంచ ఎండుమావుల్లో తచ్చాడుతున్న వారులారా, శాశ్వత లోకాన్ని విడిచిపెట్టి క్షణభంగూర లోకం కోసం వెంబరాడుతున్న వారులారా, అతి త్వరలోనే మనవో దుర్భేద్యమైన కనుము మరణం గుండా వెళ్ళి ఒక సుదీర్ఘమైన అత్యంత ప్రమాదకరమైన లోయ గుండా ప్రయాణించబోతున్నాం. ఈ ప్రమాదకర లోయలో రేచకటి లాంటి అంధాకారం ఉంటుంది. సూర్యకిరణాలు ఉండవు, చంద్రుని వెన్నెల ఉండదు, నక్షత్రాల కాంతి ఉండదు, దీపాల వెలుతురు ఉండదు, ఆఖరికి మినుగురు పురుగుల మినుకు కూడా కనిపించదు. ప్రమాదకరమైన లోయ భయంకర అడవిలాగా నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రమాదకర లోయలో భయంకర క్రూర మృగాల భయం ఉంటుంది. మట్టి ఇల్లు, మట్టి పానుపు, మట్టి పడకలు ఉంటాయి. భయాందోళనలు కలుగుతూ ఉంటాయి. పురుగులు, పాములు, విషపూరితమైన సర్పాలు, తేళ్లు ఉంటాయి. గుడ్డి చెవితి దూతలు కథలతో నించొని ఉంటారు. అక్కడి నుండి పారిపోవడానికి వీలు కాదు. నిలకడగా నించోవడానికి కూడా వీలు కాదు. అల్లాహను, ఆయన ప్రవక్తను విశ్వసించేవారులారా, శుభవార్త అహరుడుగా హెచ్చరికలు చేసేవాడిగా పంపబడిన దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మాటను కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి. మా రఅయితు మంజరన్ కత్తు
ఇల్లాహ్ వల్ ఖబరు అఫజావు మిన్హు. నేను సమాధి కంటే తీవ్ర భయాందోళనకరమైన చోటు మరొకటి చూడలేదు. ఓ బుద్ధి జ్ఞానాలు కలవారులారా, మనోమస్తిష్కలు కలవారులారా, ఒంటరితనం, అంధాకారం, ప్రమాదకర నిర్మానుష్య లోయలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న వారులారా, కనుక ప్రమాదకర లోయ ప్రయాణికులారా, బయలుదేరే ముందు మానవ మహోపకారి అయిన ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మాటను ఒకసారి శ్రద్ధగా వినండి. ఫజలస అలా షఫీరిల్ ఖబరి ఫబకా హత్తా బల్లస్సర సుమ్మ ఖాల్ యా ఇఖ్వాని లిమిస్లి హాజా ఫఅఇద్దు. ఒకసారి ఆయన ఈ ప్రమాదకర లోయ అంచున కూర్చొని విలపించసాగారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన కన్నీటితో సమాధి మట్టి సైతం తడిసిపోయింది. ఆ సందర్భంలో ఆయన తన అనుచారులతో ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: యా ఇఖ్వాని లిమిస్లి హాజా ఫఅఇద్దు. ఓ నా అనుచారులారా, ఇలాంటి స్థలం సమాధి కోసం సత్కర్మాలు చేసుకోండి. కనుక సహోదర సహోదరిమణులారా, మనమందరము నమాజ్, రోజా, జకాత్, ఉపవాసాలు మరియు ఖురాన్ పారాయణంలో వెళ్ళి మనల్ని మేము సమాధి శిక్షణల నుండి కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి సమాధిలో వెలుతురుని ప్రసాదిస్తాయి, ఒంటరితనం ఉండదు, ప్రాణానికి హాయిగా కూడా ఉంటుంది. చివరిలో అల్లాహ్తో దువా ఏమిటనగా, ఓ అల్లాహ్ మనలందరినీ సమాధి శిక్షల నుండి కాపాడుగాక. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహ్. माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीहिम। अब तक आपने तेलुगु और उर्दू में तकरीरें सुन ली हैं। ये आखिरी मुकर्ररात हैं। यहाँ पर सिर्फ तकारीर ही नहीं बल्कि बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं ताकि तालिबात एक दूसरे से बढ़ कर के पढ़ाई कर सकें, एक दूसरे से आगे बढ़ सकें। तो इस मदरसे में दुआओं का कंपटीशन भी रखा गया था। तालिबात कई सारों ने इसमें हिस्सा लिया, मगर उनमें से एक को आपके सामने लाने की मैं गुजारिश करता हूँ। इंशाअल्लाह वो यहाँ पर आएंगी और हमारे सदर मोहतरम या मेहमान उनके लिए दुआएं पूछेंगे। वो जो सवाल करेंगे वो दुआ तालिबा पढ़ करके सुनाएंगी। उनका नाम है समीरा बिनते जलील अहमद असफ़ुसानी की तालिबा हैं। वो आएँ और अपना हुनर पेश करें। हलाल रोजी तलब करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। नया चांद देखकर पढ़ने की दुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी व सलामति वल इस्लामी व तौफीकी लिम्मा तुहिब्बु फतरज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। घर में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु व घर में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि क़रजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। मुसीबत के वक्त पढ़ने की दुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा मुसीबती वक़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ला बास तहूरिन इंशाअल्लाह। अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिक।
اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. بارش اترتے وقت کی دعا اللہم صیبا نافعا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. مجلس سے اٹھنے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دوزخ سے پناہ مانگنے کی دعا اللہم انی استغفرک اللہم انی استغفرک من النار. ہدایت مانگنے کی دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اللہ آپ کے حافظے کو پختہ کرے اور ہم تمام کو ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے طالبات کے علمی مظاہرات کی ایک آخری کڑی، آخر میں ایک طالبہ نظم پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے آئیں گی، سنینا بنت محمد رفیع، کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا کا ایک گھر آباد کیا عقبہ کا مگر برباد کیا. دنیا کا ایک گھر آباد کیا عقبہ کا مگر برباد کیا.
मुश्किल में अल्लाह को याद किया, मुश्किल हुई आसान भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ तक तालिबात के मुज़ाहरात ख़त्म होते हैं। गुल गई गुलशन गई गुलाब की बारी आ गई। गुल गई गुलशन गई गुलाब की बारी आ गई। दिल थाम कर बैठो यारों सदर मुहतरम की बारी आ गई। मैं सदर मुहतरम से अदबन व एहतरामन गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी कीमती नसीहतों से नवाजें फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ हिदायतुल्लाह उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल एहतराम जनाब फैज़ुल्लाह साहब लेक्चरर, जनाब सादिक भाई साहब, मोहतरम मुअल्लिमात और तालिबात, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसके एहसान से आज का हमारा प्रोग्राम, आज की हमारी ये नशिस्त बिफ़ज़लिल्लाह ख़त्म होने जा रही है। अल्लाह ताला के शुक्र व एहसान के बाद आज के हमारे जो दो मेहमान हैं शेख फैज़ुल्लाह साहब लेक्चरर और जनाब सादिक साहब, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारा निकाला है। हमारे जो आज के ख़ुसूसी मेहमान हैं जनाब फैज़ुल्लाह साहब, आज तो उनकी तालीम का दिन था तो उन्होंने छुट्टी रख के हमारे लिए ये मौका निकाला है और हमारे मदरसे को आए हैं। खुशी है कि आपने हमारी खातिर अपना एक दिन वक्फ़ किया है और साथ में हम उम्मीद भी रखते हैं कि आप हमारी तालिबात के लिए, हमारी मुअल्लिमात के लिए अपनी कीमती नसीहतें ज़रूर नवाजेंगे। मदरसा शुरुआत की बुनियादों में से है, अभी कोशिशों पे जारी है। आप इस बारे में हमारे लिए जो भी रहनुमाई कर सकते हैं ज़रूर आप रहनुमाई करें। तालीमी मैदान में, तदरीसी मैदान में, हर बारे में आप हमारे से सीनियर का तजुर्बा रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बारे में हमारी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। साथ ही मुअल्लिमात तालिबात ने बहुत 2-3 तकरीरें सुनी हैं तेलुगु में और उर्दू में। इस वक्त आपके सामने कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, एक हदीस सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निअमतानी मग़बूनानी फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की 2 नेमतें ऐसी हैं जो दुनिया जहाँ के लोगों को मुयस्सर है लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। एक अस्सिहा, सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरा है अल-फ़राग़, खाली वक्त। ये 2 नेमतें अल्लाह ताला ने हम में से बहुत सारों को नवाजा है। एक है सेहत और तंदुरुस्ती। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ख़ास करके आज के ज़माने में जहाँ लोग बीमारी की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं। दिन ब दिन नित नई बीमारियाँ लोगों का सामना कर रही हैं।
تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جوانی دی ہے، کم عمری میں علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، ہاتھ پیر کی سلامتی اگر ہمارے پاس ہے، تو یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ ورنہ دنیا کے بے شمار مالدار ایسے ہیں جو اپنی جگہ لکھ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن صحت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دن رات پریشان رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو صحت سے نوازا ہے، صحت کا لحاظ رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دوسری نعمت ہے فراغ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو وقت دیا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں مشغولیت، مصروفیت، بزی رہنا ایک اللہ کی طرف سے ایک قسم کا سمجھیں کہ ایک عذاب ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا بزی رکھے کہ وہ دین کے لیے وقت نہ نکال سکے، عبادت کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دین کے لیے چنا ہے، اگر ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا موقع ہمارے پاس ہے، کتابیں ہمارے پاس ہیں، کتابوں کے ساتھ کتابیں پڑھانے والے ہمارے پاس ہیں، تو یہ مصروفیت کے مقابلے میں یہ خالی وقت ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو ایسا خالی وقت دین کی خاطر نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ زندگی نے ان کو اتنا مصروف کر کے رکھا ہے، بیوی بچوں کی مصروفیت نے ان کو اور مشغول بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو ایسا موقع دیا ہے تو ہم ضرور اس موقع کو کام میں لائیں۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اگر ہم عمل کر لیں تو زندگی میں ایک کامیاب انسان بن کے زندگی گزاریں گے۔ ہماری صحت بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لگائیں، ہمارا خالی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر لگائیں، تو دنیا کا علم حاصل کرنے والے ہوں یا دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ایک کامیاب انسان بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حدیث پر مجھے بھی آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ صدر محترم نے ہمیں بہت ہی قیمتی نصیحت سے نوازا ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اپنے اوقات کو، اپنے صحت کو غنیمت جانیں۔ ان کے بعد ہماری طالبات کی تقاریر اور نظم کو سن کر کے جو تأثرات پیدا ہو سکتے ہیں مہمانوں کے دلوں میں، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، تأثراتی کلمات کو پیش کرنے کے لیے میں ڈائز پر بلانا چاہوں گا جناب شیخ صادق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے تأثراتی کلمات کو پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم అమ్మా బాద్. కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి అతిథులు, ఉర్దూ పంతులు గారు ఫైజుల్లా సార్ గారికి, మరి ఇక్కడ హాజరైనటువంటి విద్యార్థులకు ఇస్లామియా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. అల్లాహ్ యొక్క శాంతి, శుభాలు, కారుణ్య కటాక్షాలు మీ అందరిపై కురియుగాక. ఆమీన్ యా రబ్బుల్ ఆలమీన్. అల్హమ్దులిల్లా, చక్కటి సాహిత్యంతో కూడినటువంటి ప్రసంగాన్ని ఈరోజు నేను విన్నందుకు నేను అల్లాహ్ సుబ్హాను తాలాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు తెలియజేసుకుంటున్నాను. చాలా చక్కని ఫ్లూయెన్సీ తెలుగులో బింతే జలీల్ అమ్మాయి గారు ప్రసంగించారు. చాలా చక్కగా ఉంది. వల్తఫతి సాకు బిస్సాక్, ఒక కీలు మరొక కీలును కలిపివేయబడినప్పుడు మంత్రించి ఊదేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా, నన్ను కాపాడేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అని నీవు గొంతు చించుకొని ఇంత ఏడ్చినా ప్రయోజనము లేదు. ఈ ఫ్లూయెన్సీ చాలా బాగుంది, కాకపోతే అర్థము కొంచెం వేరుగా చెప్పింది. చాలా చక్కగా చెప్పినారు. మద్రసాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు నేను తెలియజేసేది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సమయము చాలా అమూల్యమైనది. విద్య, అక్షర జ్ఞానం, అక్షరాస్యతతో కూడినటువంటి
ఈ మదరస ప్రాంగణంలో మీరు వీలైనంత ఎక్కువగా విద్యను ఆర్జించడానికి, విద్యను నేర్చుకోవడానికి నిరంతరం కృషి చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ మదరసాలోని అధ్యాపకురాలు బాజీ మరియు వారి యొక్క భర్త గారు అనునిత్యం చాలా ప్రయత్నాలు, కృషి చేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఒక నాణ్యమైనటువంటి విద్యను విద్యార్థినులకు అందించాలన్నటువంటి ఒక తాపత్రయంతో, ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో వాళ్ళు కఠోరమైనటువంటి శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి పనిని ఈరోజు మీ ముందు ఆకారంలో వారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి వారి శ్రమను, వారి యొక్క కృషిని మనం గుర్తించాలి. వారు ఏ విధంగా అయితే, ఏ లక్ష్యంతోనైతే మిమ్మల్ని విద్యాబుద్ధులుగా బోధిస్తున్నారో, మిమ్మల్ని ఒక ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దాలనుకున్నారో, మీరు ఆ విధంగా తయారు కావడానికి కృషి చేయండి. ముఖ్యంగా బాలికలు తండ్రి గారి, తల్లిదండ్రుల యొక్క పేరును నిలబెట్టాలి. మంచిగా చదువుకొని విద్యా సంస్కార బుద్ధులు అలవర్చుకొని రాబోయే భావి తరాలకు మీరు ఆదర్శులుగా కావాలని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. గొప్పదైన లక్ష్యం, అల్పమైనటువంటి సాధనాలు, ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు ఈ మద్రసలో నేను చూస్తున్నాను. గొప్పదైన లక్ష్యాలు దాదాభాయ్ గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైనటువంటి చదువును అందించాలని. మౌలానా హిదాయతుల్లా గారి రూపంలో ఒక మంచి అధ్యాపకుడే మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు. కాబట్టి వారు ఏదైతే బోర్డు మీద మీకు బోధిస్తున్నారో వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి, వారిని చదివి అర్థం చేసుకొని ఇతరులకు వినిపించేలా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ వనరులు చూస్తే చాలా అల్పంగా ఉన్నాయి. ఎటువంటి ఆర్థిక వనరులు కూడా ఈ మదరసకు లేవు. కేవలం దాదాభాయ్ గారు ఎంతో శ్రమిస్తున్నారన్నమాట. గుర్తించండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అల్పమైనటువంటి వనరులను గుర్తించి మీరు మీ లక్ష్యాలను చేర్చుకోండి. ఏ లక్ష్యం కొరకు అయితే మీ తల్లిదండ్రులు, మీ అన్నలు ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారో ఆ విద్యను మీరు ఆర్జించండి. విద్యను నేర్చుకోండి, ఇతరులు కూడా నేర్పించండి. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తెలియజేశారు ఏమిటంటే, ఆయన ఉత్తముడు అన్నారు. ఎవరైతే ఖురాను నేర్చుకొని, విద్యను నేర్చుకొని ఇతరులకు నేర్పిస్తాడో అతడు ఈ ప్రపంచంలోకెల్లా చాలా ఉత్తమమైనటువంటి వాడు అన్నారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు. కాబట్టి సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది. విద్య నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వయస్సులోనే విద్యను నేర్చుకోవాలి. పెద్దగైన తర్వాత బాధ్యతలు అనేకంగా పెరిగిపోతాయి. నా ఈ ప్రసంగాన్ని చాలా చిన్నగా చేసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఫయాజ్ సార్ కూడా మాట్లాడేది ఉంది. సమయం తక్కువ ఉంది, జుమా నమాజ్కు సమయం ఆసన్నమవుతుంది. ఇంతటితో నా ప్రసంగాన్ని నిలిపేస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. माशाअल्लाह जनाब शेख सादिक साहब ने बज़ुबान तेलुगु बेहतरीन अंदाज में हमें बतलाया है कि मदरसे के मकासद क्या हैं, मदरसे के सरपरस्त हमसे क्या चाहते हैं। तो इनके बाद इसी तरह मैं जो हमारे एक और मेहमान खुसूसी हैं उनको भी हमें कुछ नसीहतें करने के लिए बुलाना चाहूँगा। आ जाओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, आ जाओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां के चमन का जश्न बहारां तुम्ही से है, वो आएँ और कीमती नसीहतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अज़ीज़ तलबा, आज आपके मदरसे में पहली मर्तबा आना हुआ, बहुत खुशी का दिन है। माशाअल्लाह तलबा ने तक़ारीर का बेहतरीन मुज़ाहिरा किया। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, दादा भाई और इनके अहलिया और मुअल्लिमात जो भी हैं, इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपके मदरसे के एक इजलास के लिए मुझे मदऊ किया। चलिए, सबसे पहले मैं अपनी तकरीर को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहले बात करूँगा तालिबात ने जो यहाँ पर
तकरीर का मुजाहिरा किया, उस सिलसिले में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है? राइट। माशा अल्लाह कुल मिलाकर 4 तकारीर हुए, 2 तेलुगु और 2 उर्दू। एक बहुत खुशाइंदा बात है कि इलाक़ाई ज़बान हमारी जो तेलुगु ज़बान है उसमें तलबा महारत हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। माशा अल्लाह तलबा की आवाज़ ज़बान बेहतरीन है। मतलब जब तलबा तकरीर करते हैं उनके तकरीरी मुजाहिरे से मदरसे का मियार मालूम होता है, मदरसे की काबिलियत और मुअल्लिमात इन तलबा के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, इन तमाम चीज़ों का इजहार होता है। इस सिलसिले में माशा अल्लाह ज़बान के ताल्लुक़ से हो, कुरानी आयात अहादीस वग़ैरह बेहतरीन तौर पर कुल मिलाकर 4 मुक़र्रिरीन तलिबात ने बेहतरीन तौर पर पेश किए। बस थोड़ी बहुत तब्दीली चाहिए। जब कभी आप गौर से सुनिए, हर एक को तकरीर करना ज़रूरी है, किसी के लिए छूट नहीं रहेगी मदरसे में, क्योंकि आपका ये मदरसा है। मैं बहुत फ्री बात करूंगा आपसे, पहले फ्री रह जाइए। मैं कोई बहुत बड़ा मुखर्रिर नहीं हूँ कि एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए आया हूँ, बस मैं आज आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो आपकी यहाँ तरबियत हो रही है, आपको हर एक को तकरीर करने का मादा पैदा करना ज़रूरी है, हर एक को स्टेज पर आना है और बात करना ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। हर कोई आकर यहाँ ठहर के बात नहीं कर सकता, कर सकते? बहुत सारे लोग शर्माते। एक तरबियत के ज़रिए से, एक ट्रेनिंग के ज़रिए से आप इस खौफ को, एक डर को निकाल सकते हैं। कैसा? मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे ही आपस में जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर ले, सहेली से बात करते, डरते क्या? नहीं डरते, बहुत फ्री से बात कर लेते। नहीं करते, नहीं करते। तकरीर करेगा तो डरते, लेकिन अपनी सहेली से बात करना रहा तो फ्री से करते। उस वक्त डर क्यों नहीं होता? फ्रेंड से बात करते उस वक्त फ्री से बात करते ना, डर नहीं रहता। तब यहाँ आके बात करना तो थोड़ा डर रहता। कई को क्या बात से बोलो, यहाँ ठहरने डर होता। क्या बात से? आप लोगों से इब्तिदाया बोलो, आप बोलो, आपका नाम क्या? नाम? सहेले से बात करते आराम से, यहाँ आके बात करे तो थोड़ा शर्म महसूस होती। क्यों मालूम है? क्या बात से? तुमको जो जहन में आता है वो बोल दो, बस है, कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोलता आपको, उधर नहीं देखना। बैठ जाओ। क्या रहता मालूम है? सिंपल लॉजिक रहता। लॉजिक कुछ भी नहीं है, आपको कमांड नहीं रहता उस बातचीत पे। आप जिस वक्त अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, सहेले से बात कर रहे हैं, वो टॉपिक के ऊपर क्या है, आपको कमांडिंग रहता, आप उस पर नॉलेज रहता, आपको उस पर उबूर रहता, आपको तमाम चीज़ें मालूम रहते। उस वास्ते क्या करते, आप फ्री से बात कर लेते। यहाँ आकर बात करते वक्त क्या होता, आपको जो टॉपिक आपको दिया गया है, जिस टॉपिक पे आपको बात करना है, उस पर कमांडिंग नहीं रहता। आप ऑब्जर्व कर सकते, बास तकारीर करने वाले क्या करते, तकरीर करते करते थोड़ी देर रुक जाते। किस वास्ते? जो लोग तकरीर करें ना, कम से कम वो तो जवाब दो। याद करके आते हम लोग, रट कर आते। लेकिन मदरसे के लिए बेहतर है इब्तदाइया में ही रटना ज़रूरी है। रटने से क्या होता, बाय हार्ट करना जिसको बोलते हैं हम, मुँह ज़बानी याद करना जिसको बोलते हैं हम, मदरसे के लेवल में यही तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है। इसकी वजह यह है कि आपको जुमलों की साख्त, स्ट्रक्चर, जुमला कैसा इस्तेमाल करना, वो चीज़ आपको आ जाती। इसके साथ साथ जो लोग नज़म, नात, तकारीर करते, उनके अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत रहता। अल्फाज का ज़ख़ीरा मतलब अल्फाज बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ अल्फाज आ जाते। कब आते? ये रटने से आते, ओवरऑल मुज़बानी याद करने से आते। नज़में जो पढ़ाते ना, वजह क्या है मालूम? शायरी जो सीखते हम लोग, अल्फाज सीखते हम, दूसरा कुछ भी नहीं। तो तकरीर के लिए क्या करना है, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस ताल्लुक़ से आपको कमांड रहना, उबूर रहना। आपको उस टॉपिक के ताल्लुक़ से जितनी ज़्यादा मालूमात होंगे उतना आसानी के साथ आप बात कर सकते हैं। अगर आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है तो स्ट्रक हो जाती गाड़ी। गाड़ी चलना तो पेट्रोल रहना ज़रूरी है, नहीं बग़ैर पेट्रोल के। इसी तरीके से आप तकरीर कर रहे हैं यहाँ, तो आपको जो मौजू दिया गया है उस पर याद करना। तो इब्तदाइया के लिए आपको रटना ज़रूरी है। आगे चलकर यह तरीक़ा नहीं काम आता। आसान तरीक़े तकरीर करने का कुछ भी फार्मूला सिर्फ एक ही है, 3 चीज़ें याद रखना है।
آج اگر آپ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں, کسی گھر میں بھی بیان کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, جو موضوع لینا چاہے آپ لے سکتے, آپ کی پسند. بہتر ہے کہ موضوع کیسا رہنا معلوم, حالات حاضرہ پر رہنا, ایٹ پریزنٹ کیا چل رہا ٹرینڈ پہ, اس پر موضوع لینا. اس کے بعد 1 یا 2 قرآن کی آیات اس سے ریلیٹڈ, اس سے تعلق رکھنے والے. نیکسٹ 1-2 حدیثیں, اس کے ساتھ ایک قصہ بھی ضروری ہے دنیا کو سنانے کے لیے. ایسی صورت میں بہترین تقریر ہو سکتی. چلیے, جو لوگ تقریر کریں ماشاء اللہ بہترین ہے, کوئی خامیاں نہیں ہے, بس اتنا توجہ دو کہ تھوڑا آہستہ بات کرنا, بہت فاسٹ نہیں. سامعین کو سنے نہیں, سمجھ میں نہیں آتا, جو لوگ آگے بیٹھ کے ہیں آپ کے نہیں سمجھ میں آتا, اس کے لیے تھوڑا کیا کرنا, سلو کر لینا. نیکسٹ ایک اور چیز کیا ہے, سوالیہ انداز ضروری ہے. آج کے دور میں, پرانا زمانہ چلے گیا, لوگ بہت شوق سے آ کے تقاریر وغیرہ سنتے تھے. آج کے دور میں سوالیہ انداز ضروری ہے. آپ سے میں بات کر رہا ہوں, تقریر میں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے. آپ احادیث پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں احادیث میں, آپ احادیث میں سن سکتے ہیں اللہ کے رسول نے سوال کیا, کس سے, صحابہ سے. آپ کو معلوم صحابہ کیا جواب دیتے تھے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رائٹ, یہ طریقہ ہے کب سے, پہلے سے ہے ہم لوگوں کے پاس. ون سائڈ کبھی گاڑی نہیں چلتی, ایک طرف سے نہیں, تالی بجنا کا تو 2 ہاتھیں ہونا نہیں. اسی طریقے سے ہم اکیلے بولنا نہیں, سامنے والا اگر ایکٹیو ہونا ہے. ابھی بچوں کو نہیں, جو سامنے بیٹھ کے ہیں ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ لوگ کھیلتے رہتے. آپ سے بھی اگر میں اکیلا ادھر ایسا دیکھتے ہوئے باتیں کرتا چلا گیا تو آپ کو بھی نیند آتی نہیں. تو تقریر کرنے کے لیے ضروری کیا ہے, آڈینس سے آئی کانٹیکٹ بولتے ہیں ہم انگریزی میں. آئی کانٹیکٹ مطلب آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنا. مثال کے طور پر تقریر کا میں پہلے حصے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تقریر کرتے اس وقت صرف ادھر ہی نہیں بات کرنا, یا صرف منڈی ادھر ہی رکھ دیے, یا سیدھا ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں, نہیں. تمام سامعین کی طرف نگاہ رہنا ضروری ہے. جہاں تک ہو سکے ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ, بہترین انداز سے بات کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت سارے خصوصیات بہت اچھی طریقے سے مثبت انداز میں آپ لوگوں نے تقاریر کی, بہت بہترین ہیں. تھوڑے بہت ہیں, یہ چیزیں ٹھیک کر لیجئے. چلیے میں اپنی دوسری طرف آتا ہوں, اپنے اصل موضوع کی طرف. عزیز طلبہ و طالبات, آپ لوگوں نے سنا صدر صاحب کی جانب سے, میرا نام محمد فیض اللہ ہے, میں یہاں پر کالج میں کام کرتا ہوں, گورنمنٹ ڈگری کالج. چلیے آج آپ لوگوں کے سامنے بس میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس پیغام کے تحت چند پوائنٹس ہیں, ان کے ذریعے سے آپ سے بات کروں گا. عزیز طلبہ, ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہونا ضروری ہے. بغیر مقصد کے زندگی بیکار کی چیز ہے. آج صبح ہم اٹھے, آج کا مقصد تھا, پروگرام ہے ہمارا, ایک مقصد ہے نہیں. مثال کے طور پر یہاں سے نکلے, ایک مقصد رکھے ہم, کہاں جانا, کرنول جانا ہے. یہاں سے باہر جا کے ادھر گئے تو کرنول آتا, اس طرف گئے تو آتمگور آتا. کرنول جانا بول کے ادھر جا سکتے کیا؟ اسی طریقے سے آپ لوگ ہیں, اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیے, بغیر مقصد کے زندگی مت گزاریے. آپ سوال کر سکتے ہیں کیا زندگی کا مقصد ہو سکتا ہمارا؟ چلو ان سے پوچھ لیں گے, بچوں سے. ادھر آؤ جی, ادھر آؤ. کیا نام آپ کا؟ محمد. بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. چلو چلیے, ان کا مقصد ہے حافظ بننا. رائٹ. بچپن میں کیا ہوتا معلوم ہے, میں آپ لوگوں سے بات کروں, خاص کر بڑے طلباء سے, چھوٹے بچے بھی ہیں, آپ لوگ بھی سنیے, آپ سے بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا میں. آپ لوگوں کا بھی ایک مقصد ہونا ضروری ہے. بغیر مقصد کے زندگی بیکار ہے. یہ باتیں بولنے کے لیے بہت اچھی نظر آتے ہیں, کیا عملی میدان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے, غلط ہے؟ رائٹ. آپ بول سکتے ہیں, اگر لڑکے رہے تو بول سکتے ہیں کہ ہماری زندگی ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں بول کے. آپ لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ عملی طور پر ہمارے والدین کے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کی جو نجی زندگی ہے, پرسنل زندگی ہے, وہ والدین کے ہاتھ میں ہے. علم کے تعلق سے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. علمی میدان پہ بول رہا ہوں میں, علمی طور پر
یہ عام طور پر ہمارے پاس اب جو آپ لوگ جو سن رہے ہیں علم جو ہے دینی علم دنیاوی علم یہ تقسیم کر لیے ہم لوگ. یہ تقسیم اب سے ایک تقریباً 200 سال 300 سال سے تقسیم ہوئی, ورنہ علم علم ہے اللہ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں علم نافع ہے. علم میں کیا ہے؟ علم نافع. کیا مطلب علم نافع کا؟ فائدہ نفع بخش علم, فائدہ مند علم. علم کوئی بھی کیوں نہ ہو, سائنس ہو, تیلگو ہو, میتھس ہو, کچھ بھی ہو, فائدہ اگر علم سے ہے وہی علم ہے. اگر پڑھنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہے وہ بیکار علم ہے, ایسے علم کی ضرورت نہیں. پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کیجئے. وہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ایک بہترین گھریلو زندگی بنانا چاہتے ہیں, ایک مقصد بن سکتا. آپ ایک معلمہ بننا چاہتے ہیں, ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے. آپ ایک لیکچرر بننا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے. یا یہاں سے پڑھ کر اور کچھ شعبے میں تجارت کرنا چاہتے ہیں. اسلام تجارت سے نہیں روکتا. آج تو ایسے وسائل ہیں, ایسے سورسز ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بھی تجارت کر سکتے ہیں, نہیں بول کے نہیں. سب سے پہلے اپنی زندگی دماغ کو سنبھالیے اور ایک مقصد کا تعین کیجئے, ایک ٹارگٹ رکھیے. بغیر ٹارگٹ کے صرف صبح سے اٹھ رہے ہیں, گھر میں تیار ہو رہے ہیں, مدرسہ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں گھر میں, بیکار کی زندگی ہے. ایسی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنا مقصد ہونا ضروری ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی, صبح آ رہے ہیں, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ کیا ہو سکتا سوال؟ عالم کورس ہے, آپ تکمیل کر سکتے ہیں, مکمل کر سکتے ہیں. حافظ بننا چاہتے ہیں, حافظ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عالم حافظ سے آج کے دور میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا. ہنر بھی سیکھ سکتے آپ. ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے ہنر ہو, تعلیم کے بعد بھی حاصل کر سکتے. یا نہیں, کم از کم آپ لوگوں کا الحمدللہ اس مدرسے میں ایک اچھا انتظام بھی ہے کہ اوپن 10th بھی ہے آپ کے پاس, اوپن انٹر بھی ہے, جس کے ذریعے سے ٹیچر بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں. ایک ہے پہلا کام کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کا تعین کر لو. رائٹ, ٹارگٹ رکھ لیے ہیں, مقصد کا تعین کر لیے ہیں. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ محنت ضروری ہے. کیا چیز ضروری ہے؟ محنت. بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھے صبح سے شام تک پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا نہیں. اگر رات بھر سیل فون لے کے امی کا یا پپا کا سیل فون دیکھ کے آئے تو یہاں آئے تو کیا ہوتا؟ نیند آ رہی دیکھو ان کو نہیں. رائٹ, محنت کرنا ہے. محنت کیسا کرنا, کیا کرنا؟ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو نصاب میں, جو سلیبس میں آپ کو کتابیں ہیں اسی پر محنت کیجئے. کیا کرنا ہے؟ محنت. صحیح محنت ضروری ہے. ایک چیز دیکھیے, محنت دو ہیں. ایک ہوتی ہے بیکار کی محنت, آدمی صبح سے شام تک کام کرتا لیکن کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے صحیح محنت. مثال کے طور پر جنگل میں جانے کے بعد لکڑہارا رہتا, لکڑیاں کٹ کرنے والا, صبح سے شام تک لکڑیاں کٹ کرتا. دو لوگ رہتے, قصہ سن لو مختصر سا. ایک بوڑھا, ایک نوجوان. بوڑھا بہت لکڑیاں کٹ کر کے لاتا, نوجوان جو ہے بہت کم لکڑیاں لاتا. حالانکہ ہم سوچ سکتے کہ لکڑیاں کون زیادہ لا سکتا؟ نوجوان لا سکتا, لیکن بوڑھا زیادہ لکڑیاں لاتا رہتا. حالانکہ تھک جاتا رہتا نوجوان, پریشان ہو کے پوچھتا آپ کیسا کرتے بول کے, پہلے آپ بتاؤ آپ کیسا کرتے. تو نوجوان بولتا میں صبح سے شام تک لکڑیاں کٹ کرتے ہی رہتا ہوں, محنت کرتے ہی رہتا ہوں. یہ شخص کیا بولتا؟ عمر رسیدہ بوڑھا شخص بولتا میں نہیں کرتا صبح سے شام تک. میں کیا کرتا ہوں, تھوڑی دیر کام کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی کلہاڑی کو تیز کرتا ہوں, پھر اس کے بعد کام کرتا ہوں, تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, پھر کام کرتا ہوں. ایک طریقہ رہتا. نوجوان کیا کرتا, جوش میں جذبے میں آ کر صبح سے شام تک لکڑیاں کٹ کرتا لیکن زیادہ لکڑیاں نہیں لاتا. میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں تو صحیح محنت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ صحیح محنت ضروری ہے. آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اسی پر کمانڈ حاصل کیجئے, چاہے احادیث کی کتابیں کیوں نہ ہو, چاہے قرآن کی کتابیں کیوں نہ ہو, چاہے دوسری کتابیں کیوں نہ ہو. آپ خانگی طور پر, پرائیویٹ کے طور پر 10th انٹر لکھنا, جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں صحیح محنت حاصل کیجئے. دوسری چیز ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ مقصد کا تعین کرو, اس کے بعد محنت کرو. صحیح محنت کرنا ضروری ہے. غلط محنت کریں گے نتیجہ غلط نکلے گا, نتیجہ ضروری ہے. نیکسٹ, اب مقصد رکھ لیے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے رکاوٹیں آ سکتے ہیں. بیریئرز جس کو ہم کہتے ہیں, رکاوٹیں آتے نہیں آتے, بہت زیادہ آتے رکاوٹیں.
उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, उसको कट करने के लिए 2 लोग साथ दे सकते हैं आपको। आपके वालिदैन साथ दे सकते हैं रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, आपके मुअल्लिमात जो आपके टीचर्स हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पढ़ रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कोई तालिब इल्म हासिल करने पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, किससे रुजू होना, किससे मिलना, उस्ताद नहीं से, राइट, मुअल्लिमात से, उस्ताद से मुलाकात करके जो भी है सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखो, हमारा जो आजकल का निज़ाम है, स्कूल सिस्टम हो, तालीम का सिस्टम हो, उसमें सवाल करना मायूब समझा जाता। आम तौर पे क्या है मालूम, सवाल करे तो असातिज़ा जवाब नहीं देते, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। अभी मैंने बताया कि अल्लाह के नबी खुद तरीक़ा क्या था, अल्लाह के नबी का सहाबा से सवाल करते थे, बाद में हदीस बयान करते थे। तो आज के ज़माने में भी आपको भी सवाल करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बनु इसराइल के जैसे सवालात नहीं करना, फिर मौका मिला बोल के सवालात पे सवालात, बाल की खाल, खाल की चर्बी, चर्बी का तेल बोलते, बाल रहता था इतना नहीं, ऐसे सवालात नहीं, लेकिन सही सवालात असातिज़ा से कर सकते हैं। कहाँ तक? अपने निसाब की हद तक। सिलेबस में कुछ भी नहीं समझ में आ, रुकावटें, बाहर की कुछ भी परेशानियां हैं, किसको बता सकते हैं? वालिदैन को बता सकते हैं। यहाँ पे जो गार्डियन हैं, जो निगरानकार हैं, इन लोगों को आप बता सकते हैं। तो इन रुकावटों के ज़रिए से भी आप कर सकते हैं, राइट। एक और चीज़ है एहसास कमतरी, ख़ास कर हमारी कौम में, मुसलमानों में, उर्दू मीडियम पढ़ने वाले, मदारिस में पढ़ने वाले, थोड़ा बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको हम, एहसास कमतरी। उन्होंने बड़े के की तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़े, सुनो बहुत ज़्यादा, उन्होंने मालदारा, ये बिल्कुल गलत, निकाल दो इस चीज़ को। आपको मालूम है उर्दू मीडियम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ जो है इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे मेरे दोस्त पढ़े, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ हूँ इस मानों में कि अल्लाह मुझे जो है, हमारी कॉलेज में एक लेक्चरर को 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है। कितना? और हमारी जो मैडम है 3 लाख रुपए सैलरी है उनकी, लेडीज़, आप जैसे लेडीज़ हैं वो भी, कितना? 3 लाख। कैसा मिल रही है? तो मेहनत, दूसरा कुछ भी नहीं है। दौरान तालिब इल्म, पढ़ने के ज़माने में अगर आप इस वक्त मेहनत करें, सुकून की ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़िंदगी भर सुकून रहता। और इस अब जो मौका मिल रहा है, दोबारा मौका नहीं मिलता आपको। 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर आबाद रहते, मसरूफ़ रहती ज़िंदगी, तालीम हासिल करने वक्त नहीं रहता, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए ये जो मौका है आपका मदरसे का, बहुत बेहतरीन मौका है। इसका इस्तेमाल करके आप एहसास कमतरी से बाहर आना ज़रूरी है। एहसास कमतरी का तो क्या, ये चीज़ क्या है मालूम, नफ्सियाती तौर पे रहती जहन में, ज़ाहिर नहीं होती किसी के पास। हम खुद सोचते रहते अंदर दिमाग में, किसी को बोलते भी नहीं हम लोग, बस आम तौर पे देख सकते हैं आप, खासकर औरतों में ये ज़्यादा रहता। कहीं फंक्शन को गए समझो, तमाम औरतें हैं, पहले दाखिल होने के साथ ही क्या करते हैं आप लोग? पूरी निगाह डालते हैं हमारी टीम किधर है। यस, हमारे पूरे तमाम के तमाम लोग रिश्तेदारी हैं फंक्शन में, उसके बावजूद भी क्या करते हैं हम, हमारे जो जहनियत है, हमारी जो जहनियत जिनसे मिलती है उनके पास जाके बैठते हैं, बैठते नहीं। मिसाल के तौर पे कहीं कोई मालदार भी है, इल्म वाले भी है, थोड़ा दूर हट जाते। क्यों? एक जहन में एक चीज़ अटकती रहती है हमारे, उसी का नाम है एहसास कमतरी। उनसे हमें कम क्या बोलने की चीज़ आती, इसको निकाल सकते हैं हम। कैसा निकाल सकते हैं? एक बेहतरीन हथियार इल्म। इल्म क्या है? एहसास कमतरी को निकालने का बेहतरीन हथियार इल्म और मेहनत, चाहे कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे मैं जिस गांव से आया हूँ, खरिया, छोटा सा खरिया है कुरकुंदा, बहुत सारे मालदार लोग भी हैं, नहीं बोल के नहीं, आज वो लोग वहीं पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहीं चले गए। वजह क्या है मालूम? सिर्फ इल्म, सिर्फ मेहनत। तो आपको एक अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है, वक्त है, असातिज़ा हैं, सिलेबस है, निसाब है, सब कुछ है। आपको करना क्या है? मेहनत करके पढ़ना है। मेहनत करके आप पढ़ेंगे, इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। एक और चीज़, एहसास कमतरी जो बोला मैं, उसको निकालने के वास्ते एक तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। अंग्रेजी का मतलब क्या, बड़ी बातें नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब है मुस्बित सोच। आम तौर पे हमारे जहनों में क्या है, एक चीज़ आती, कोई भी काम करना हो, पढ़ना हो, करना हो, तो 2 ख्यालात जहन में आते, एक मुस्बित, एक मनफी, पॉजिटिव नेगेटिव जिसको बोलते हैं। मतलब ये करे तो अच्छा होता बोल के ज़रा सोचते, ज़रा लोग सोचते, बुरा होता बोल के ज़रा सोचते। मिसाल के तौर पे आम तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं मालूम? एक एग्जाम्पल देते हैं। ग्लास है यहाँ पे आपके सामने, उसमें मैं तो आधी गिलास तक पानी डाला,
आप लोगों को बोला कि इसमें क्या है, क्या जवाब आता आपका? पानी। कितना है? हाँ राइट, आप सब लोग माशाल्लाह मुस्बित सोच के हैं, आधी गिलास पानी है बोलते। एक दूसरा आदमी भी रहता आधी गिलास खाली भी बोल सकता हूँ, बोल सकता नहीं? खाली है। तो दो चीजें हैं यहाँ, पानी और खाली, दो चीजें भी सही है, लेकिन देखने की नजर चाहिए। तो मुस्बित सोच से क्या है, एहसास कमतरी को खत्म कर सकते हैं हम लोग। मतलब दौलत के मामले में हो, इल्म के मामलों में हो, समाज के मामलों में, हर जगह जो है हम लोग मुस्बित सोच रखते हुए अगर मेहनत करेंगे, हम लोग जो है आराम से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है, खामोश नहीं रहना, कभी भी अकेले अकेले नहीं रहना, दोस्तों से कम्युनिकेशन, बातचीत करना। मदरसा है, क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम में पढ़ना, उसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं आप तालीम के सिलसिले में, अहादीस के सिलसिले में, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इससे क्या होता मालूम है, आपके अंदर का जो खौफ है वो चले जाता बाहर। डर रहता अंदर, आपको भी नहीं मालूम आपके अंदर डर है बोल के। आजकल थोड़े मूवीज देखने का, तो मूवीज साइकोलॉजिकली निकल रही, मतलब मूवीज का तो यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं है, कहानियों में देख सकते हैं आप। बाज़ लोगों को आज के दौर में कोविड आने के बाद नफ्सियाती मरीज ज्यादा हो गए हैं। एक इंसान है, हद से ज्यादा उसके जिंदगी में गम है, तो उन क्या करना, उसके दोस्तों से बोल लेना। बोले तो क्या होता, दिमाग फ्री हो जाता, सब सुकून रहता। अगर बगैर बोले कि ऐसे ही रहा तो क्या रहता, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो शख्सियत है नी, बहुत कमज़ोर हो जाती। ख़ासकर औरतों में ये चीज़ ज़्यादा रहती है। उस वजह से क्या करना है, अपने दोस्त अहबाब से बातचीत करते हुए इन मसाइल को आप हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं एहसास कमतरी। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी होना चाहते हैं, तो उसमें कुर्बानी बहुत बड़ी चीज़ है। कुर्बानी देना, कुर्बानी का तो क्या कुर्बानी, बकरे काट के गाय काटते, वो कुर्बानी नहीं। कुर्बानी चाहता दीन, खास कर इल्म बगैर कुर्बानी के नहीं आता। आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ ठहर के बात कर रहा हूँ, आपके नंदयाल में मुलाजिमत कर रहा हूँ, सिर्फ कुर्बानी की वजह से। मैं हॉस्टल में रहा तकरीबन 15 साल। कितने साल? घर में नहीं, हॉस्टल में रहकर वो कुर्बानी देने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुशहाल रखा। तो आपकी भी जो है इल्म अगर हासिल करना है, कुर्बानी होना है। किसकी कुर्बानी? चंद चीज़ों की कुर्बानी। सबसे पहली चीज़ वक्त की कुर्बानी। वक्त आपके पास, हर एक के पास, आपके पास, मेरे पास कितने घंटे हैं दिन में? 24 घंटे रहते। कभी बैठ के सुकून से, फुर्सत से बैठ के कैलकुलेशन डाल के रखो, 24 घंटे में आपका वक्त कहाँ कहाँ गुजर रहा है। एक दिन, बस एक दिन आप कैलकुलेशन करो, हिसाब लगाओ कि आपका एक दिन कहाँ गुजरा। 24 घंटों में 10 घंटे आराम को चले गए, 2-3 घंटे भी अगर ज़रूरियाती ज़िंदगी, खाना पीना वगैरह को चले गए, 10 घंटे बचते। फिल वक्त आपके लिए 10 घंटे इल्म हासिल करने के लिए लगाना ज़रूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और उसकी कुर्बानी ज़रूरी है। रात में एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, नफ्सियाती तौर पे इंसान को अल्लाह ताला बनाया, सही वक्त क्या है? फजर के बाद पढ़ने का सही वक्त क्या है? फजर के बाद बरकत भी रहती, सब कुछ रहती। बाज़ लोगों में ज़हनी तौर पे आदत रहती, किसी को रात में जागने की आदत रहती, किसी को सुबह में जागने की आदत रहती। इंसानों की फितरत है आमतौर पे। ये मैं दीन से हटकर बात करूँ, पर्सनालिटी पे बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ याद रखो, आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करो, कौन से वक्त में आपको पढ़ना पसंद है ये डिसाइड कर लो। कौन से वक्त में आपको पढ़ना पसंद है? आम तौर पे क्या होता, सुबह से शाम तक मदरसे से जाके आते, एग्जाम है, इम्तिहानात है तो तैयारी करते हैं हम लोग। नहीं, इम्तिहान रहा तो ही पढ़ते, इम्तिहान रहा तो नहीं। बल्कि अपनी शख्सियत को पहचानो, आपको कौन से टाइम पढ़ना। कैसे पहचान सकते? आपका वक्त सही वक्त रात का है, सुबह का है पढ़ने का, कैसा पहचान सकते? एक और सवाल मेरा, शौक एक चीज है, किसी भी चीज का शौक हो सकता, राइट। खासकर लड़कियों में क्या होता, डिजाइनिंग, नहीं, मेहंदी डिजाइनिंग डालना शौक हो सकता, राइट। एक चीज याद रखो, इल्म को शौक बनाओ, इल्म को शौक बनाओ। कैसे? इंसान की फितरत यह है कि शौक से जो काम करता है इंसान, उसको वक्त नजर नहीं आता। कभी किताब लेके बैठे, आप पढ़ रहे हैं लेकिन नींद आ रही, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, बहुत जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। वजह क्या मालूम है? वो
सिर्फ शौक का फ़र्क रहता. क्या फ़र्क रहता? शौक. हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक काबिलियत, एक टैलेंट रखा रहता. आप में भी एक टैलेंट रहता. हम लोग क्या है मुसलमानों में सिर्फ घरेलू हद तक ज़िंदगी तक सोचते. हम बिजनेस में, तिजारत में हमारी कौम आगे नहीं आती. आज हिंदुस्तान में जस्ट टू चल रहा था हर एक के घर में वुमेन बोलते ना, औरत को वुमेन, पावरफुल वुमेन बोल के टाइप कर दो, सब इंडिया के पावरफुल नेम्स आ जाएंगे. उसमें मुसलमान के नेम भी आएंगे. रजिया सुल्ताना बेहतरीन है, या नहीं तो जकी आजकल तेलंगाना की एक लड़की है, बेहतरीन तौर पे खेल कूद के मैदान में आगे है. या सानिया मिर्जा, नाम सुने, स्पोर्ट्स, राइट. एक चीज याद रखो कि आपका शौक क्या है उसकी पहचान कर लो पहले. मिसाल के तौर पे आपको पढ़ा रही, उर्दू है, अरबी है, अरबी में कई सब्जेक्ट्स हैं, कई किताबें हैं, उसमें आपका शौक क्या है, असल चीज वो है. मिसाल के तौर पे आप आलिमियत तक जाएंगे, उसके बाद आगे अगर तालीम हासिल करेंगे तो लास्ट फाइनल जो पहुंचेंगे, एक चीज पे कमांडिंग रहता आपको, एक चीज पे आप उबूर हासिल करेंगे. वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है वहां. आपको मैं एक बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो. आपका शौक क्या है मालूम करो. आमतौर पे तलबा को कुछ भी नहीं मालूम रहता. सुबह से शाम तक स्कूल आते, कॉलेज आते, मदरसा आते, पढ़ते, निसाब रहता, सिलेबस लिखते, कामयाब होते, निकल चले जाते. शौक कुछ भी नहीं मालूम हो सकता. शौक को मालूम करने का आसान तरीका यह है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो मजमून आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त पे आपको वक्त नजर नहीं आया, भूख नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब यह कि आपका शौक उसमें है. मिसाल के तौर पे बच्चों को, लड़कों को देखो, क्रिकेट खेलने जाते, ना पानी की फिक्र, ना खाने की फिक्र, सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते. थोड़ी देर किताब लेके बैठे तो भूख लगती रहती, प्यास लगती रहती. क्यों? वहां नहीं आई सो चीज, यहाँ क्यों आ रही? वहां शौक से जाके खेलते क्रिकेट, जो खेल है. तो इसी तरीके से आपके अंदर भी एक शौक पैदा करना जरूरी है. आपके पास जो निसाब है, जो किताबें हैं, उसमें से आपकी पसंदीदा क्या चीज है, उस पर कमांडिंग हासिल करने की कोशिश कीजिए. चलिए, मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है एजुकेशन का, उस पर थोड़ी बात करूंगा. आप लोग मदरसे में पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग ओपन 10th लिख रहे हैं नहीं, SSC, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ओपन 10th, राइट. 10th है, इंटर है. आप लड़कियों के लिए एक आसान तरीका यह है कि उर्दू मीडियम अगर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिमत भी हासिल करना चाह रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते. मुलाजिमत बनना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की, आप दीन की तालीम तो हासिल करेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, साथ ही साथ हुकूमती तौर पर भी मुलाजिमत कर सकते हैं. आमतौर पे जहन में नहीं रहता है मुलाजिमत कर सकते क्या बोल के. एक बैंक का शोबा बाजू रख दो, बैंक में मुलाजिमत नहीं करना है, उसके अलावा गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर में मिल सकती है मुलाजिमतें. उसके लिए कुछ भी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, मैं मुकम्मल तौर पे उर्दू, अरबी, फारसी का आदमी हूँ. आपको जैसे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी. कब तक? जब तक मैं मदरसे में था, वहाँ पे था. डिग्री होने के बाद मैं मुलाजिमत के सिलसिले में तेलुगु सीखा. मैं अब तो माशाअल्लाह बेहतरीन तकरीर करे बच्चे आकर, आपको तेलुगु ज़बान आती. मुझे आल का बात है मालूम, डिग्री होने के बाद तकरीबन 20 साल में मैं तेलुगु सीखा. सीखने की वजह क्या है मालूम है? सिर्फ मुलाजिमत का एग्ज़ाम पेपर जो रहता वो तेलुगु और अंग्रेज़ी में रहता, उर्दू में नहीं रहता. मेरी मुकम्मल तालीम हुई उर्दू, अरबी, फारसी में. तेलुगु नहीं आता. तब क्या करा, मैं खुद से आल से शुरू करके 2 साल मेहनत करके कंप्लीट तेलुगु सीख के तेलुगु की किताबें पढ़ा. मैं वो जो मेहनत थी मेरी 2 साल की, मेरी ज़िंदगी को बदला दी. इसका बोलने का एक ही मकसद है कि आप लोग अरबी के, उर्दू के माहिर होंगे, इसके साथ साथ आप अंग्रेज़ी और तेलुगु को भी सीखना ज़रूरी है. आपके मदरसे में सहूलत है, ओपन 10th लिख सकते, ओपन इंटर कर सकते. उसके बाद TTC का एग्ज़ाम है, वो भी लिख के मुलाजिमत भी हासिल कर सकते. इंशाअल्लाह मैं दादा भाई से ताल्लुक़ात रखूँगा इस सिलसिले में, मदरसे के सिलसिले में. अगर इस सिलसिले में कुछ भी गाइडेंस करना है, बच्चों को लिखने में हो, कोचिंग भी हो, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं मदद करूँगा. मुलाजिमत के सिलसिले में गाइडेंस, क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है बोल के. फिलवक्त आप एक काम करिए, अरबी, उर्दू के साथ अंग्रेज़ी या तेलुगु में महारत पैदा कीजिए. हमारे पास क्या है मालूम, खौफ में इंग्लिश का तो डर जाते हम लोग, अंग्रेज़ी का तो डर होता. एक बात याद रखो, LSRW इंग्लिश में बोलते हैं, ABCD तो आते हैं, कोई मसला नहीं है. एक फार्मूला है LSRW बोल के, मतलब यहाँ के जो लोग तकरीर करें ना, उर्दू में आप भी तकरीर करते बेहतरीन, तेलुगु में जो तकरीर करें माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, अंग्रेज़ी में करने वाले थे अंग्रेज़ी में भी कर सकते. अल्लाह ताला हमारे जहन को ऐसा दिया कि आप
जो चीज़ सीखना चाहते हैं कोशिश करेंगे तो ज़रूर आ जाती। अच्छी अंग्रेज़ी बात करना है, अच्छी उर्दू बात करना है, चंद चीज़ें हैं, जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? लिजनिंग, सुनना। क्या करना? कोई मुखर्रिर अच्छी तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तेलुगु ज़बान, तेलुगु या अंग्रेज़ी ज़बान, दोनों में से कोई एक ज़बान। अंग्रेज़ी सीखना है, आसान तरीका। अंग्रेज़ी सीखना है तो फर्स्ट क्या है? अंग्रेज़ी सुनना। सुनने के वास्ते रेडियो बेहतरीन चीज़। पुराने ज़माने की बातें कर रही हैं क्या सार बोलते हैं, रेडियो से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। आजकल हर एक सेल में रेडियो है, न्यूज़ सुन सकते हैं आप। सुनने से क्या होता? आप तेलुगु सुनेंगे, तेलुगु का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बात वर्ड एक लेटर रहता है उसको तलफ़ुज़ कैसा निकालना। मिसाल के तौर पर उर्दू में कई अल्फाज हैं, हम लोग आमतौर पर बातचीत करते हुए गलत तलफ़ुज़ भी निकालते हैं हम लोग, नहीं, उसका सही तलफ़ुज़ डिक्शनरी में देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़बान सीखना है तो सबसे पहले क्या करना है? सुनना वो ज़बान। उसके बाद क्या है? बातचीत करना। उर्दू में बातचीत कर लेते सर, तेलुगु में भी घर के पास थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस, बातचीत करना। वो बातचीत करने से पहले क्या करना मालूम है? रीडिंग, पढ़ना। आपको समझ में आओ, ज़बान सीखने का एक आसान तरीका यह है कि आपको समझ में आओ नहीं आओ, पढ़ते ही चले जाओ। चाहे आपको फसी उर्दू भी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही, किताब पढ़ते ही चले जाओ, बस है। रोज़ाना, एक दिन का काम नहीं है, 3 महीने 6 महीने ट्राई करो। कौन सी भी दुनिया की ज़बान सीख सकते हैं आप। समझ में आओ नहीं आओ, पढ़ते ही चले जाओ। चंद दिन के बाद क्या होता? कई अल्फाज आपके जहन में बैठ जाते, सुनते सुनते सुनते। उसके बाद क्या करना है? राइटिंग, लिखना, लिखने की कोशिश करना। जो ज़बान आप सीखना चाहते हैं लिखना। इन तमाम से बढ़कर असल चीज़ है सोचना। आप याद रखो, आप अरबी अच्छी सीखना चाह रहे हैं, तेलुगु, उर्दू, कौन सी भी ज़बान सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है? किस में सोचते हैं हम लोग? फिर वक्त तुम बैठ के ही यहाँ दिमाग कहाँ कहाँ चक्कर लगाता रहता। किस में सोचते हैं हम लोग आमतौर पे? कौन सी ज़बान में सोचती? उर्दू में सोचते नहीं। नेक्स्ट इजलास हो जाता, जुम्मा का टाइम होता, जुम्मा को जाना है, ये तमाम चीज़ें दिमाग में चलती रहती। ये सोचना क्या है? हमारा दिमाग अल्लाह ताला ऐसा बनाया कि आप उसको जो ऑर्डर देंगे वही रिफ्लेक्ट करता। बाल को दीवार पे मारे तो क्या होता? आता नहीं आता? जितना ज़ोर से मारेंगे उतना ज़ोर से आएगा। इसी तरीके से हमारे दिमाग को जो बात ऑर्डर देंगे वो ज़रूर आ जाएगा। आप ज़बान सीखना चाह रहे हैं, इल्म सीखना चाह रहे हैं, ख़ासकर ज़बान के मसले में तेलुगु और अंग्रेज़ी में सोचना शुरू करो। शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, आपको समझ में नहीं आता। आहिस्ता से जैसे जैसे आप सोचना शुरू करेंगे आसानी रहती। ज़बान की तरक्की के लिए, तकरीर की तरक्की के लिए, इल्म को बढ़ाने के लिए सोचना ज़रूरी है। ख़ासकर हमारे कौम में तेलुगु और अंग्रेज़ी का तो डर रहता। वजह यह है कि हम लोग सोचते नहीं। किस में सोचते? हम लोग उर्दू ज़बान में सोचते। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आखिर में वक्त भी ख़त्म हो रहा, अभी मैं बात करता हूँ, एक 10-5 मिनट ले लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं। अपनी ज़िंदगी का एक निज़ामुल अमल बनाइए। टाइम टेबल होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? टाइम टेबल। टाइम टेबल का तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड मदरसे में चलते नहीं, पहली घंटी, दूसरी घंटी। इसी तरीके से हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है कि हम आराम कब से कब तक करना है, मसरूफियाती ज़िंदगी क्या है, इल्म कब तक है। रोज़ाना अपना मुहासिबा करते हुए आज हमारे इल्म में कितनी तरक्की हुई, हम लोग कितनी नई बातें सीखे, कितने नए अल्फाज सीखे, ये चीज़ों का मुहासिबा करना ज़रूरी है। बग़ैर निज़ामुल अमल के, बग़ैर टाइम टेबल के कोई काम नहीं हो सकता। आम तौर पे मदारिस में क्या होता, स्कूल में हो, एक टाइम टेबल रहता, वो क्या मालूम है, एक बैल रहता। पहले ज़माने में जो है तेल निकालने के लिए एक बैल को रखे घाने में घुमाते रहते। उसको घुमाते वक्त क्या करते, आंखों को पट्टी बांध देते। क्यों? कितनी दूर जा रहा नहीं मालूम होना बोल के। घूम फिर के सुबह से 2 घंटे फिरने के बाद आंखों से पट्टी निकाले तो जहाँ था वहीं रहता, लेकिन काम के लिए घुमाते। हम लोग भी निज़ामुल अमल बना के क्या करते मालूम है, रूटीन लाइफ चलती रहती। उसको क्या करना, मुहासिबा करना ज़रूरी है। आज के दिन मेरी तरक्की कितनी हुई, 8 दिन में मेरी तरक्की कितनी हुई, कितने नए अल्फाज सीखे, कितने ज़बानें सीखे, क्या इल्म में इजाफा हुआ 1 महीने में, 1 साल में। ये फ़िक्र जहन में लगा लो, ऑटोमेटिक आपको अंदाज़े भी नहीं हुआ था, आप बहुत दूर तरक्की करते हुए चले जाएंगे। आपकी सलाहियतें बढ़ेंगी, तकरीर के में क्यों ना हो, तहरीर में क्यों ना हो, हर चीज़ में बढ़ेगी, लेकिन मुहासिबा करना ज़रूरी है।
राइट, आखिर में मुअल्लिमात से मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर टीचर्स हैं बहुत सारे पढ़ा रहे होंगे, ख़ासकर मुअल्लिमात के सिलसिले में एक चीज़ ये है कि बच्चों को सवाल करने के लिए उभारना ज़रूरी है। मौजूदा ज़माने में बच्चा सवाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम हमारी एक ऐसा सिस्टम है, मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ, सवाल करने शर्मिंदगी होती, सही, क्लास में मैं अगर सवाल करी तो सहेलियाँ पूरे हंसते मेरे ऊपर, हंसते नहीं हंसते, राइट, लेकिन अगर आप सवाल करके शर्मिंदा होंगे तो सिर्फ क्लासरूम हंसेगी, बाहर दुनिया में जाकर सवाल करें तो पूरी दुनिया हंसती, सही नहीं, वो बेहतर ये बेहतर है। तो इस वास्ते क्लासेस में सवाल करना बेहतर है, सवाल करना सीखिए। मुअल्लिमात से गुजारिश है कि तलबा को सवाल का मौका दें, साथ ही साथ तलबा की हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में तलबा की हिम्मत अफजाई के बग़ैर कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ख़ासकर हमारे उर्दू मीडियम मदारिस में जो है तलबा की हिम्मत अफजाई उतनी नहीं करती जितनी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ रही तो ये अच्छा रहता। मेरा एक छोटा भाई है, हैदराबाद में पढ़ने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया, वहाँ पे एक रायचोटी का लड़का मिला उसको। वो लड़का एक बात बोला कि आपके भाई की वजह से मैं यहाँ आया, बोला, मतलब मेरी वजह से, मैं अपनी तारीफ नहीं कर ले रहा हूँ, हिम्मत अफजाई से क्या होता बोल रहा हूँ। हुआ क्या था, मैं रायचोटी में इंटर पढ़ाता था, वो बच्चा पहली सफ़ में आके ऐसे बैठा, पहले मरतबा सार आके मैथ्स सोशल पढ़ाए तो खौफ के डर को क्या करा, मैं नहीं पढ़ता बोल के बाहर आ गया हूँ। मैं उसको क्या भी नहीं बोला, तू परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 10 दिन बैठ, नहीं समझ में आया तो मुझे आके पूछ, मैं दूसरा तरीक़ा देता हूँ बोल के हिम्मत करके उसको रोका मैं, बस दूसरा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा क्या करा, 2 साल पढ़ लेके टीचर ट्रेनिंग भी लिखा, हैदराबाद में सीट भी आ गई, हो सकता है टीचर भी बन गया हो। सिर्फ उस्ताद के 5 मिनट के कहने से उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो असातिज़ा भी क्या है, आज के ज़माने में बच्चों की हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। शरारत करते, गलतियां करते, सबक नहीं याद करके आते, बच्चों की आदत रहती, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करते हुए, पनिशमेंट आज के ज़माने में तो सही तरीक़ा नहीं है, उनको समझा सकते हैं, जहाँ तक हो सके उनकी हम हिम्मत अफजाई करें। सिर्फ हिम्मत अफजाई की वजह से ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मेरी मुअल्लिमात से गुजारिश है कि बहुत मासूम बच्चे हैं ये, इनकी बेहतरीन निगरानी आप कर रहे हैं माशाअल्लाह, साथ ही साथ उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रखे और इस मदरसे के हमेशा तरक्की रहे। ख़ासकर जो निगरानकार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, आपकी ज़िंदगियों की संवारने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं इन बच्चों से भी इंशाअल्लाह कभी दूसरी मरतबा आके मखसूस तौर पे बात करूँगा। बस आपने हमको मदऊ किया, इस सिलसिले में ख़ासकर दादा भाई और उन मुंतज़िमीन का मैं ममनून व मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कुछ भी सवाल करना चाहते हैं ये टॉपिक के ताल्लुक़ से तो आराम से कर सकते हैं। कोई कुछ सवाल? इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी की बातों को सुन करके उनकी तारीफ़ में क्या कहूँ, अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हैं। बस उनकी इन तमाम बातों को सुन करके एक ही शेर ज़ुबान पर बेसाख्ता निकल जाता है। आपकी नसीहत में दरिया की रवानी देखी, आपकी नसीहत में दरिया की रवानी देखी, गुंचा व गुल की रंगीन जवानी देखी। हम मेहमान खुसूसी के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके यहाँ आने को कबूल फ़रमाए, आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी से नवाजे। आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही साथ आपके हक़ में मैं इस मदरसे के सरपरस्त शेख अबुल हसन से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी के हक़ में एक शील्ड पेश करें। माशाअल्लाह बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ज़ल रहमत के बाद मुअल्लिमात और मुंतज़िमीन जामिया की मेहनतों और कोशिशों की बदौलत आज का ये इजलास यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं
کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سنی گئی نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو نصیحتوں کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.